रवि प्रजापति, प्रेजेंट सर। सूर्यभान कुमार, प्रेजेंट सर। हरीश्वर प्रसाद, सुधांशु रंजन। प्रेजेंट सर। हरीश्वर प्रसाद कुछ कह रहे हैं। आई थिंक ही वांट टू कम्युनिकेट। क्या कह रहे हैं? ओके, ठीक है, अटेंडेंस लग गई इसकी। सुधांशु रंजन। सुधांशु प्रेजेंट सर। ओके, उत्कृष्ट गोस्वामी। प्रेजेंट सर। कल नहीं थे? नहीं सर, कल नहीं थे। अनिरुद्ध प्रताप। प्रेजेंट सर। रजत सिंह। प्रेजेंट सर। राज कपूर। यस सर, प्रेजेंट। रजत सिंह, बहुत कम आते हो तुम। जब से आ रहे हो तो इरेगुलरिटी बहुत है तुम्हारे में। नहीं सर, 1-2 क्लास मिस हुई है बस। 1-2 क्लास नहीं, तुम्हारी 14 तारीख की क्लास मिस है, 20, 21 और 22। 14, 20, 21, 22। हाँ सर, लास्ट वीक मंडे में एब्सेंट था। ठीक है, जब से आए हो तो अटेंडेंस तो रेगुलर रखो। ठीक है सर। So today we are discussing about the DC machines. Okay, elementary direct current machine. What is the elementary machine? In the elementary machine, we simply look the performance of the machine, where the Faraday's principle of electromagnetic induction or interaction of the fields is observed. तो उसमें सिंगल कॉइल ही होगी, रोटर में सिंगल कॉइल होगी, स्टेटर में, एंड रोटर कॉइल इज आर्मेचर कॉइल एंड stator coil is field coil. Okay, so here only one set of coil is present in the rotor as armature winding. You can see here, image दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर, दिख रही है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, we are supplying the field winding current. DC supply, we are giving the DC supply to the field winding, and the current is entering from here, and we are providing the flux which is going downwards. Okay, so the direction of flux is downwards. So the axis of the field is this F axis. Similarly, half part of the winding is above and half part is downwards. Here you can say it also has the same direction of the current. So the number of turns, suppose there are NF number of turns in the field winding, so NF will be NF by 2 will be will provide the N, and NF by 2 will provide the S in the air gap. Okay, ये N ये नीचे बनेगा, S ऊपर बनेगा यहाँ पे, ये N बनेगा यहाँ नीचे,
और ये बनेगा S ऊपर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो NF/2 फील्ड वाइंडिंग का जितने टर्न्स हैं, तो हाफ ऑफ द turns will be upside and half of the turns will be downside. Okay, and here we can see there are two conductors in the rotor armature. When we are giving the supply from these terminals, the current is going on inside the commutator, and this is the commutator bar, non black area, okay, white area. Here the conductor is connected to this commutator bar, and the current is going to this conductor, okay, so this coil side. So current fed from the AC source goes into the conductor A of the coil, and again from the back side it comes to the A dash, and again comes to this commutator segment, and again fed back to the source. So the direction of current is like this, okay, and so the effective position of the poles generated by this supply in the rotor is, the direction is this. So here you have N, and here you have S poles, okay, clear. So what is the torque? The torque will be generated in the direction where suppose you have N and N, so the repulsive force will be generated here, okay. Similarly, the attractive force between this and this, okay. तो यहाँ पे इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये रोटर एन पोल और स्टेटर एस पोल के बीच में, यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Then you have a assumption of single diagram, single line diagram of equivalent circuit of this field and armature. So field winding has two components, one in upper side and one in downside, that is F1 dash and F2 dash, and armature winding is fed from the voltage VA and IA. So these represent the carbon brushes. So here it is showing generally that field winding is fed from the separate source VF, and armature winding is fed from the separate source VA. This is elementary machine. So writing the equation of the voltage equation for the winding, we have VF equal to RF IF, that is the resistive drop in the field winding, and the variation, if any variation is there in the flux linkage of field winding. So field winding flux linkage may vary with the time due to the rotation of the armature winding or armature, and the change in the current in the armature, okay, and change in the current of field. तो एक particular जो rotor flux linkage है, that may be due to the current of the field itself and current in the armature itself, okay. मतलब वो जो भी total flux linkage in the field winding will be affected by its own current and the current in the armature, okay. So here you can see lambda f is self flux linkage and mutual flux linkage, ठीक है,
ऐसे ही यहाँ पे यू कैन सी द flux linkage for armature winding AA dash. There is only one armature winding, so you have AA dash. So there is a mutual flux linkage LAF IF and self flux linkage of that winding. Clear? Now you can see here minus L cos theta R. This is the mutual inductance of the rotor and armature. A mutual inductance will be maximum. Mutual inductance is maximum in case of zero direction. Here maximum inductance will be in case of pi direction, theta r equal to pi. Now I understand from here that whenever n of the rotor and n of the stator, that is field, ठीक है, रोटर आर्मेचर एंड स्टेटर फील्ड, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा आर इक्वल टू 0 हो गया. सपोज कि द 0 डिग्री इज एज्यूम्ड हियर, तो जो डायरेक्ट एक्सिस है उसके डायरेक्शन में ही अगर होगा, इसका जो एन पोल जनरेट हो रहा है, एन पोल ऑफ द फील्ड एंड एन पोल ऑफ द armature have the same direction, then theta r equal to 0. लेकिन हमेशा अलाइंड कंडीशन क्या होती है? अलाइंड कंडीशन ये होती है कि अगर ये फील्ड का जो हमारा फील्ड का एम एस और एन है, फिर यहाँ पे आया रोटर का एस और एन, ये ऐसे लाइन होगा, ठीक है, ये रोटर का हो गया, ये फील्ड हो गया, और ये एस और एन ये हो गया, और ये योग से यहाँ कनेक्ट होता है, तो ये एन का जो फ्लक्स है यहाँ से जाके और यहाँ पे निकलता है. तो अलाइन डायरेक्शन में क्या होता है, जो एन टू एन का जो एंगल है वो फाई थीटा आर इक्वल टू पाई होता है. थीटा आर इक्वल टू पाई में मतलब अलाइंड कंडीशन होती है, और अलाइंड कंडीशन वो होती है जिसमें हम पोल टू पोल मिनिमम रिलक्टेंस होती है. मिनिमम रिलक्टेंस का मतलब होता है मैक्सिमम इंडक्टेंस. तो द अलाइंड कंडीशन इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम इंडक्टेंस. तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज एल. तो इसका मतलब हमारा एक क्या फार्मूला आ रहा है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन आर्मेचर एंड फील्ड इज माइनस एल कॉस ऑफ थीटा आर. एल माइनस एल कॉस थीटा आर, यहाँ अगर हम पाई रखते हैं तो यहाँ माइनस बनाता है, ओके, क्योंकि जो हम एन और एन की डायरेक्शन है उसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा आर, ठीक है. तो जब भी पाई होगा, अलाइंड कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अलाइंड कंडीशन में मैक्सिमम इंडक्टेंस, ओके. मैक्सिमम इंडक्टेंस का मतलब एक तरह से क्या होगा कि अगर सपोज कि ये यहाँ पे कंडक्टर्स हैं और इसमें कोई वेरिएशन करते हैं हम, तो जो फील्ड वाइंडिंग का जो कंडक्टर्स हैं उसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस सेम है. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जब सेम एक्सिस होती है दोनों कॉइल की तो एक दूसरे पे इंडक्टेंस ज़्यादा होता है. क्लियर? ये चीज़ क्लियर है. जब भी हमारा डायरेक्शन ऑफ एक्सिस आपस में सेम है तो मैक्सिमम इंडक्टेंस होगी. और एक होता है कि एडिटिव फ्लक्स, एक होता है कम्युलेटिव फ्लक्स, डिफरेंशियल फ्लक्स. तो
डिफरेंशियल फ्लक्स की कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत कम हो जाती है और एडिटिव फ्लक्स में म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। समझ गए? एक एंटरिंग और एंटरिंग लीविंग जो होता है उसमें आप देखे होंगे कि दो इंडक्टेंस से अगर फ्लक्स ऐड हो रहे हैं तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाता है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर। यहाँ तक तो समझ आ गया है? Yes, sir. After that, we have to determine the open circuit voltage of the armature winding. Suppose we have a constant field current IF. Okay, there is no variation, so we have supposed IF a time variable IF equal to constant IF. Okay, अब यहाँ पे हम ये इक्वेशन कैसे निकालते हैं? When there is a no load, IAA will be 0. Okay, and theta r is assumed as omega r t. तो यहाँ पे जो इक्वेशन है आपका, यू कैन सी, ये इक्वेशन है लेमडा एफ, ओके, लेमडा ए डैश। तो आर्मेचर कॉइल का नो लोड वोल्टेज हमको निकालना है, तो लोड जब भी नहीं होगा तो आई ए डैश इज 0, सो ओनली lambda a dash will be this component. Okay, in case you have no any load, IAA dash equal to 0, no load. ठीक है, नो लोड की कंडीशन में ये टर्म 0 हो जाएगा। अब ये आप लेमडा के का डिफरेंशियल करेंगे जब, लेमडा ए एफ इक्वल टू आप ये रख दिए माइनस एल कॉस ऑफ थीटा आर, कॉस ऑफ थीटा आर, ओमेगा आर टी भी रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस एल और कांस्टेंट करंट आई एफ कॉस ऑफ ओमेगा आर टी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है एल ए एफ आई एफ की वो आ गई माइनस एल आई एफ cos omega t, and from this equation you replace this value of lambda a dash or I a dash is suppose 0 for no load condition. तो यहाँ पे आप जब with respect to t you will take the derivative of this equation इसका, तो क्या आता है आपका cos का माइनस साइन हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ये ओमेगा आर इंटू ए। क्लियर? सो द अल्टीमेट इक्वेशन फॉर द नो लोड induced voltage in the armature due to the field current, जब भी लोड नहीं होगा, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग हम इनिशियल फील्ड एक्साइट कर देते हैं बट आर्मेचर में हम सप्लाई नहीं देते हैं, तो अगर मोटर रोटेट कर रही है तो देयर विल बी इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द टर्मिनल्स। ओके, आई इक्वल टू 0 है अगर, उस कंडीशन में एक इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा व्हेन वी हैव एक्साइटेड द फील्ड इटसेल्फ। ये क्लियर है? ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज, we are not providing the external supply, then there will be voltage appeared if there is a rotation। ठीक है, अगर मोटर, तो ये जो एक तरह से ये कहलाता है बैक ईएमएफ। अगर हम सप्लाई देते हैं, ठीक, तो बैक ईएमएफ तो हमेशा जनरेट होगा, नो लोड की कंडीशन में वो टर्मिनल वोल्टेज में अपीयर होगा। अगर हम सप्लाई दे रहे हैं उस कंडीशन में बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज
no load voltage means without supplying the source, this is the induced voltage. Okay. क्योंकि मोटर की कंडीशन में करंट IA dash is going inside the circuit. ओके, सर्किट के अंदर जा रही है इन केस ऑफ मोटर। तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होगा? इन केस ऑफ IA dash equal to 0, that terminal voltage will be induced voltage due to the field only excited. ठीक है, ये क्लियर है क्या? यस सर। इस तरह से ये रोटेशनल EMF होता है, बिकॉज वी हैव द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा r रेडियन पर सेकेंड एंड excited field current IF, there will be a certain flux linkage LIF, certain flux linkage present in the field and rotor speed. Due to this there will be generated voltage and this is a sinusoidal function. तो sinusoidal function of theta r, तो जब भी theta r वेरी होगा तो there will be a induced voltage which is a sinusoidal. और चूंकि ये DC फील्ड है, ओके, सो ये रेक्टिफाइड साइनसोइडल होगा। तो यू कैन सी हियर that whenever there is a change in the theta r, there will be sin pi by 2 पे मैक्सिमम होगा VAA dash एंड पाई 0 और पाई पे 0 होगा। 0 और पाई पे 0 की कंडीशन ये है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि whenever the fluxes n and n are in same direction, n of the stator and n of the rotor, तो वहाँ पे 0 कंडीशन होगी। और पाई बाय 2 की कंडीशन ये होगी कि जब फ्लक्स क्रॉस डायरेक्शन में है, दोनों वाइंडिंग से फ्लक्स क्रॉस डायरेक्शन में है, एंड 0 कंडीशन इज दैट, यहाँ पे 0 वोल्टेज का मतलब है हियर द कम्यूटेशन इज गोइंग ऑन, मीन्स द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द आर्मेचर terminals becomes 0 due to the commutation process. This is, you can see here, this is the commutation process. Here the whatever the terminals, the voltage between the AA dash is there, that is started by this. okay, तो जो भी अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है, इंड्यूस हुआ, तो एक तरह से यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाएगा। ओके, ये शॉर्ट हो जाने के कारण क्या होगा, ये पूरा यहाँ पे वोल्टेज डिप हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज, और ये शॉर्ट हो जाएगा। यू हैव शॉर्टेड दिस। एक तरह से दिस टोटल सर्किट इज शॉर्टेड एंड दिस टोटल सर्किट इज शॉर्टेड, ऑल शॉर्टेड। इन दैट कंडीशन द वोल्टेज बिटवीन AA dash, दिस इज होल वाइंडिंग अप्लाइड वोल्टेज VAA dash, ये यहाँ पे ये जो वाइंडिंग है उसके बीच का वोल्टेज दैट विल रिड्यूस टू 0। ठीक है, तो यू कैन सी हियर दैट ऑलवेज द टर्मिनल वोल्टेज इज DC, मीन्स इट विल ओनली हैव द कंपोनेंट पॉजिटिव साइड ऑफ द 0 एक्सिस, निगेटिव साइड में नहीं होगा, मतलब केवल ये DC फील्ड है। आर्मेचर के अंदर ये AC बन सकता है, लेकिन जो टर्मिनल वोल्टेज है VAA डैश, यहाँ ओवरऑल कम्यूटेटर के पास में, यहाँ ये दैट विल बी ऑलवेज ए DC टाइप ऑफ सोर्स। तो साइनसोइडल फंक्शन है, तो एक बार ये मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा। ओके,
इस कंडीशन में क्या है कि जो कंडक्टर ऊपर है तो इस कंडीशन में वही कंडक्टर नीचे चला गया है, मतलब 180 डिग्री वो कंडक्टर डिस्प्लेस हो चुका है। क्लियर? तो एक्चुअली अंदर कम्यूटेटर के अंदर जो वोल्टेज है, जब यही कंडक्टर ए इधर आ जाएगा, ये दिस साइड, द सेम ए कंडक्टर विल बी दिस साइड, द वोल्टेज विल बी अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड एंड आर्मेचर। तो यहाँ पे माइनस होगा, तो इसका मतलब कि द सेम टर्मिनल हैज बीन अपोजिट पोलैरिटी, सेम टर्मिनल्स सेम कंडक्टर्स अपोजिट पोलैरिटी में आ गए। मीन्स इन अ पर्टिकुलर कंडक्टर देयर विल बी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो कम्यूटेटर के अंदर साइड जब हम जाते हैं देयर विल बी एसी क्वांटिटी। व्हेन वी आर कमिंग टू द कम्यूटेटर एंड आउटसाइड द ब्रूस in the DC machine, that will have the DC component. So here you have the DC component, and this is showing the different positions of the commutator and rotor. तो यहाँ पे एक पोजीशन दिखाया है कि एक थीटा समथिंग है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सपोज ये है, ओके, थीटा आर। और उसके बाद थीटा आर एक जीरो वैल्यू आ गई है यहाँ पे, थीटा सी भी यहाँ पे जीरो वैल्यू आ गई है ये। फिर उसके बाद थीटा सी सी आ गया। हियर यू कैन सी दैट नाउ यहाँ से ये मोटर पूरी ऐसे मूव हो रही है, थीटा सी ए फिर जीरो पे आया, फिर थीटा सी सी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस there will be different voltages generated in the terminal. Okay, this is the voltage induced due to the field excited only, open circuit voltage, and this open circuit voltage will impact the supply terminal. मतलब जैसे भी अब यहाँ सप्लाई टर्मिनल हम जो भी देते हैं, सपोज कि ये वी आर गिविंग द सप्लाई वोल्टेज यहाँ, और ये इंड्यूस्ड वोल्टेज टर्मिनल पे ये बन रहा है ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ द फील्ड एक्साइटेशन ओनली। तो जो करंट है यहाँ पे करंट घटेगी, यहाँ पे करंट बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो देयर विल बी ए पल्सेटिंग करंट इन द, इसीलिए आप देखे होंगे कि जो करंट है वो डीसी मशीन की ऐसे जाती है। प्रैक्टिकल मशीन के केस में दिखाया है कि इन प्रैक्टिकल मशीन्स देयर आर नॉट ए सिंगल कॉइल्स, देयर आर a number of coils, number of commutators, and there is a forward pitch and backward pitch. Okay, so here A1 dash, A2 dash, there are a number of windings, and this is the two layer winding. Means in the same slot you have upper layer and lower layer. Okay, so एक वाइंडिंग आप सपोज कि A1 है तो उसका ये हाफ पार्ट यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ A1 डैश, ओके, और यहाँ से एक फॉरवर्ड पिच हो गई, और फिर उसके बाद ये हो गई रिवर्स पिच, ठीक है, ये फॉरवर्ड पिच हो गई, और फिर रिवर्स पिच यहाँ पे, मतलब कुछ नंबर ऑफ कम्यूटेटर्स वो आगे जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और रिवर्स डायरेक्शन में कुछ एडवांस होगा उधर। तो यू कैन सी दैट ड्यू टू दिस एक्शन एक पार्टिकुलर करंट यहाँ से जब हमारी एंटर होती है तो ये दिस विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स हियर, एंड इट विल ट्रेवर्स होल ऑफ द सर्किट। तो एक एक्सिस जनरेट हो जाती है हमारी, दिस एक्सिस विल बी जनरेटेड, एंड ड्यू टू this axis all the conductors above this axis are the current in the conductors are downwards. Here below this axis the current is upwards. So applying the right hand thumb rule, you have the resultant poles generated in this direction. So
there will again be rotation, and as soon as the rotation starts, the new conductors come into the influence of this commutator, and again the same position will be generated. The new conductor A4 and A4, capital A4, will go to the upside of this axis, and it will have again the current downwards. अभी तो इसमें करंट अपवर्ड्स है, इसमें करंट डाउनवर्ड्स हो जाएगी कुछ देर बाद, जैसे ये अप साइड मूव करेगा तो मूवमेंट होते ही एंड दिस A4 डैश will go downwards the axis, and it will have the in place of cross it will have the dot. So current reversals will be taking place, and there is a axis generated. तो आप ये देख सकते हैं कि according to the rotor position there is a voltage appeared across the terminals. So एक रिपल जनरेट होगी और मैक्सिमम वोल्टेज जो भी होगा वो अप्लाई होगा. जीरो की कंडीशन तो जा नहीं पाए क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ कॉइल्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग. तो आप ये देख सकते हैं कि ये कॉइल हो गई, इसके 90 डिग्री में एक ये कॉइल हो गई A3 डैश, और उसके 90 डिग्री में A1 डैश है. You can see here ये A3 और ये A3 डैश हो गई, और इसके करेक्ट 90 डिग्री में A1 और A1 डैश हो गई. ठीक है. So there is a mutual relation of voltage according to the position of windings. तो A2 डैश का रिलेशन क्या होगा, वो 45 डिग्री शिफ्टेड होगा. ओके. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A2 डैश इज 45 डिग्री शिफ्टेड. ठीक है. यहाँ से ये जाएगा 90 डिग्री की जगह ये केवल 45 डिग्री शिफ्टेड है. ऐसे ही एवरी कॉइल विल हैव द शिफ्टेड एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल वोल्टेज इन द टर्मिनल. कभी अगर सब सीरीज में है, अगर एक वाइंडिंग A4 डैश A2 डैश सीरीज में है, तो अगर इसका वोल्टेज मैक्सिमम है तो ये वोल्टेज काम नहीं करेगा, वहां पे मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर होगा. सो द वोल्टेज रिपल विल बी like this, and where the zeros of the means minimum value of the voltage ripple will be at these points. ठीक है. क्लियर है. ये क्लियर है आपको? स्टूडेंट्स, आई एम कनेक्टेड और नॉट? यस सर, यस सर. तो ये चीज समझ आ गई ना कैसे यहाँ वोल्टेज जनरेट होता है. जो भी कॉइल जहां पे है, सपोज कि A3 डैश है, जो भी पोजीशन पे है. ठीक है. यहाँ A3 डैश है और A1 डैश आप देख लीजिए 90 डिग्री का स्पेस डिस्प्लेसमेंट है. इसका एक्सिस कहाँ पे है, इस वाइंडिंग का A3 डैश का एक्सिस यहाँ पर है, और A1 डैश का एक्सिस कहाँ पर है, ये है. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि A3 डैश इज फेस एडवांस्ड 90 डिग्री टू द A1 डैश. फेज एडवांस का मतलब क्या होता है, ये टाइम लैग है और ये टाइम एडवांस है. ठीक है. तो A3 डैश इज एडवांस्ड कितना, 90 डिग्री. ठीक है. टू द आप ये देखिए, ये A1 डैश है, इसका जो एक्सिस ये पॉइंट है 0 पॉइंट, और इस A3 डैश का 0 पॉइंट. दिस देयर इज एडवांस ऑफ π/2. क्लियर है. ऐसे ही सभी कॉइल्स आएंगी, और जो वोल्टेज है
अब जैसे सपोज कि एक कॉइल है A1 डैश, ठीक है, इसमें वोल्टेज ये यहाँ पर पोजीशन पर है, लेकिन वही करंट सेम सीरीज में है और करंट इंड्यूज हो रही है, तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा जनरेट हो रहा है A2 डैश, और उसके कारण सेम टर्मिनल है ये, इसके कारण ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इसके कारण ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है यहाँ पर। तो ये वाला वोल्टेज एपियर होगा टर्मिनल्स में कि ये वोल्टेज एपियर होगा, बताओ। इस पार्टिकुलर टाइम पे, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे A1 डैश का वोल्टेज ये है, बट A2 डैश का वोल्टेज ये है, तो टर्मिनल पे ये वोल्टेज एपियर होगा कि ये वोल्टेज एपियर होगा, बताओ। आंसर दो तुम लोग। टर्मिनल पे वोल्टेज एपियर होगा ज्यादा, जो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये जो V2 है, V1, सपोज V1 यहाँ डाउनवर्ड चला गया और यहाँ V2 है, तो ये V2 वोल्टेज लगभग एपियर होगा यहाँ पे, क्योंकि V1 तो लगभग 0 के हो गया, क्लियर। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज है, व्हाट एवर द टोटल सम ऑफ द वोल्टेजेस विल एपियर। तो अगर V1 0 है, अगर दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो दोनों का कंट्रीब्यूशन के बराबर वोल्टेज आएगा। सपोज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर ये दोनों वाइंडिंग्स सीरीज में है, तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का दोनों वाइंडिंग्स वो हैं, तो जो भी यहाँ पे इस एक्सिस पे जो वोल्टेजेस मिल रहे हैं, जिस वाइंडिंग में सीरीज वाइंडिंग है, तो सभी का ईएमएफ ऐड हो जाएगा। तो देयर विल बी अ वोल्टेज रिपल जनरेटेड इन द टर्मिनल वोल्टेज। This is also the same thing, but it has the advanced position of, एडवांस का मतलब क्या हुआ कि हमने जो एक्सिस है, ब्रूस एक्सिस, उसको हमने शिफ्ट किया है। शिफ्ट किया मतलब कि जो भी बाइंडिंग है वो एडवांस हो गई है। हमारा ब्रूस एक्सिस सपोज कि हम A3 डैश कितने यहाँ पे था, और ये A1 डैश पहले का हमारी क्या कंडीशन थी यहाँ पे, ये A2 डैश के सेंटर में था हमारा एक्सिस, जो ब्रूस एक्सिस है। दिस इज द ब्रूस एक्सिस, ओके सपोज। तो ब्रूस एक्सिस A2 डैश के सेंटर में था, अब हमने 22.5 डिग्री शिफ्ट कर दिया, तो जो बाइंडिंग्स हैं वो एडवांस पोजीशन पे आ गई। मतलब जो वोल्टेज उसमें बाद में जनरेट होना होगा वो पहले ही जनरेट हो जाता है, ब्रूस के आने से पहले उसमें वोल्टेज जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीक पॉइंट है और हमारे ब्रूस की एक्सिस यहाँ शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो वाइंडिंग्स में वोल्टेज जो है वो टाइमिंग के पहले ही मैक्सिमम हो गया, मतलब ब्रूस एक्सिस तक आने से पहले ही उसमें मैक्सिमम पॉइंट आ चुका है। आप ये देखिए, एडवांस का मतलब होता है वोल्टेज वाइंडिंग्स एडवांस हो गए, मतलब कि उसमें एमएमएफ का इफेक्ट ब्रूस के पहले ही हो गया है। यहाँ यू कैन सी, तो 22.5 डिग्री से शिफ्टेड हो गया है। However, always the maximum voltage between the terminal will be available. तो वोल्टेज एक्सिस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सेम रहेगा, जहाँ भी ब्रूस रहेगा वहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज एपियर होगा, चाहे हम वाइंडिंग शिफ्ट करें। बट जो भी वाइंडिंग्स में वोल्टेजेस हैं वो पहले ही ब्रूस एक्सिस के पहले ही मैक्सिमम होंगे, ठीक है। सर हाँ बोलो।
सर बोल रहे थे कि जो ब्रश फिगर में शो कर रहा है सर, वो एकदम फील्ड एक्सिस के पास में है, मतलब कि सर ब्रश एमएनए पे होना चाहिए ना सर? मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस पे ना। यस सर, ब्रश तो मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस पे होना चाहिए। तो सर फिगर में ब्रश एकदम सर फील्ड एक्सिस के नीचे ही है सर, नहीं, ऐसा एक्चुअली मतलब। ऐसा होता है, सुनो, एक्चुअली ऐसा है, ये जो हम एक कंडक्टर लेते हैं यहाँ पे लिए, ठीक है, ये कंडक्टर है एक वाइंडिंग का और ये फील्ड हो गया, ठीक। देखना ये ब्रूस एक्सिस हम इसलिए रखते हैं कि यहाँ पे जगह नहीं रहती है, एक्चुअली ये यहाँ पे डायरेक्ट प्लेस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। आप प्रैक्टिकल मशीन्स में देखोगे तो ये जो ब्रूस जब हम यहाँ पे रखते हैं तो कंडक्टर्स यहाँ तक घूम के आए रहते हैं, ठीक है। और जब हम ब्रूस एक्सिस यहाँ रखते हैं तो कंडक्टर्स यहाँ तक घूम के आए रहते हैं, ठीक है, ऐसे। तो एक्चुअली हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि फॉर द मैक्सिमम टॉर्क द इंड्यूस्ड फील्ड इन द एस्टेब्लिश्ड फील्ड इन द आर्मेचर, ये जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ दिस आर्मेचर शुड बी 90 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ फील्ड, ठीक है। तो यहाँ वो होने के लिए हमारा जितना भी कंडक्टर्स हैं वो सब यहाँ पे सपोज कि ये पॉजिटिव चार्ज हैं और यहाँ जितने भी कंडक्टर हैं ये सब निगेटिव हैं, ठीक। तो पॉजिटिव होने का मतलब आप साइड, और सपोज कि ये क्रॉस है, जितने भी कंडक्टर्स हैं पूरे पूरे आप साइड दिस एक्सिस ये क्रॉस हैं। तो हमने ब्रश यहाँ पे रखा, इसका मतलब एक्सिस यहाँ नहीं हो गई, हमने ब्रश यहाँ रखा लेकिन कनेक्शन कहाँ पे है, ठीक है। तो कनेक्शन अगर हम यहाँ पे ले जाकर दे रहे हैं तो अगर हम कनेक्शन यहाँ पे ले जाकर दे रहे हैं, ठीक है ना, इस ब्रश एक्सिस से, तो इसका मतलब कि जो भी हम ब्रश एनर्जाइज करेंगे वो यहाँ के कंडक्टर्स को एनर्जाइज करेगा, तो जो एक्सिस है वो 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ का ब्रश है, सेम यहाँ का ब्रश है, यहीं पे कंडक्टर को फेड किया हुआ है, ठीक है, यहीं पे यहाँ पे कंडक्टर को फेड किया है। तो इट डिपेंड्स ऑन वो जो उसका टर्मिनल है कनेक्शन, वो कितना दूर ले जाके शिफ्ट किया हुआ है। आप प्रैक्टिकल मशीन अगर आप देखते हैं तो यू कैन सी दैट सेम वही जगह पे नहीं आप कनेक्टेड है, ठीक है, वो ले जाके 90 डिग्री में यहाँ कम्यूटेटर में कनेक्ट किया रहता है, ऐसे जितने भी कंडक्टर हैं वो 90 डिग्री में जाके कनेक्ट करता है और यहाँ पे ब्रूसेज रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। यस सर। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसमें प्लस, इसमें सपोज कि यहाँ पे हमारा एन बन रहा है, हमको यहाँ पे एस बनाना है ताकि यहाँ पे रोटेशन हो। तो एस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम ब्रूस यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जितने भी कंडक्टर हैं इस मतलब जितने भी कंडक्टर हैं यहाँ पे ऐसा बने, ठीक है, ये एक्सिस बने। तो ये एक्सिस बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी कंडक्टर हैं यहाँ पे ये इसको हमने यहाँ से कनेक्ट किया, ठीक है, और इधर का जो कंडक्टर है उसको हमने यहाँ से कनेक्ट किया। तो द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ कंडक्टर्स और ब्रूस ये डिपेंड करता है कि हम एक्सिस तो हम 90 डिग्री लेना चाहते हैं और हम ब्रूस को शिफ्टिंग कितना रखते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम कौन से कंडक्टर में कितने टर्मिनल पॉजिटिव या निगेटिव देना चाहते हैं। सपोज कि अगर अब यहाँ से कनेक्शन है और यहाँ पे हम दे दिए तो यहाँ तो निगेटिव जनरेट करेगा, तो ये उसका कनेक्शन का वो है, ठीक है। जनरली जो है हम एज्यूम करते हैं कि ये कंडक्टर है, हम डायरेक्ट सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे रखते हैं ये कार्बन ब्रूस को, लेकिन जनरली जो है बिकॉज एयर गैप बहुत कम रहता है और वहीं पे हमारा ब्रश होल्डर वगैरह सब रहेगा वहीं फील्ड का, सपोज कि ये एरिया है और यहीं पे ब्रश होल्डर वगैरह सब लगाना बहुत पॉसिबल होता नहीं है,
सो बिकॉज ड्यू टू दीज पोल्स दिस एरिया इज फ्री, ये एरिया फ्री रहता है, इसलिए हम ब्रश का जो असेंबली है वो 90 डिग्री में रखते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस का मतलब होता है कि वहाँ कम्यूटेशन इफेक्ट बहुत कम होगा। कम्यूटेशन इफेक्ट बहुत कम होने का मतलब कि यहाँ पे फ्लक्स का इफेक्ट बहुत कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वाइंडिंग्स में, अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो वो बहुत कम होगा इस इफेक्ट पे आके यहाँ पे। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज कम होने से आर्किंग बहुत कम होगी। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस। सबसे जो फील्ड का सेम डायरेक्शन है, यहाँ फील्ड का सामने का डायरेक्शन, यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड होगा। बाकी यहाँ फ्रिंजिंग होती है, थोड़ा थोड़ा पहुँचता है फील्ड। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड वोल्टेजेस हैं वो कम रहेंगे वाइंडिंग में ड्यू टू द मूवमेंट। ठीक है, तो इसको और आप लोग स्टडी करना। इस सिंपल दिखाया है कि यहाँ पे अगर कार्बन ब्रूसेस यहाँ पे आ रहा है तो ये शॉर्ट सर्किटेड होगा, और यहाँ पे है तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। करंट विल गो इनटू द पेपर एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन एंड इट इज अपवर्ड्स डायरेक्शन, अपवर्ड्स और डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस है आर्मेचर वाइंडिंग की, वो इस डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल मोटर है कुछ स्मॉल लो पावर एप्लीकेशंस के लिए। आप कभी ये जो टेप रिकॉर्डर वगैरह मोटर लगी रहती है तो उसमें आप देखेंगे उसमें तीन वाइंडिंग होती है। तीन वाइंडिंग होती है ऐसे, तीन वाइंडिंग, और एक वाइंडिंग का ये, दूसरी वाइंडिंग का यहाँ से निकलता है, फिर दूसरे वाइंडिंग का ऐसे निकलता है। एक टर्मिनल ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये हो गया। तो ये तीन वाइंडिंग ऐसे बनती हैं इसमें, और एक ये, और उसमें तीन कम्यूटेटर होते हैं। एक कम्यूटेटर ये, दूसरा कम्यूटेटर ये, तीसरा कम्यूटेटर ये। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे नंबर ऑफ कम्यूटेटर्स आप बढ़ा देंगे, बहुत सारी कॉइल्स रख लेंगे तो यही चीज़ें बढ़ जाती हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये छोटी मोटर आप कभी टेप रिकॉर्डर खोलोगे तो उसमें देखोगे आप तीन वाइंडिंग होता है। ठीक है, और क्रॉस में ऐसे उनका कनेक्शन होता है, एक कम्यूटेटर बार में यहाँ, दूसरे कम्यूटेटर बार में यहाँ, फिर दूसरी वाइंडिंग होती है उसका क्रॉस में जाता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया हुआ है। आप ये देखिए, एक कम्यूटेटर बार में यहाँ गया है, दूसरे में यहाँ गया। ठीक, फिर दूसरी वाइंडिंग का यहाँ गया, तीसरी वाइंडिंग का यहाँ गया। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ये देखो, ये वाइंडिंग एक्चुअली यहाँ से नहीं कनेक्टेड है, ये इसका यहाँ से कनेक्टेड है, ये वाली यहाँ पे लिया है ये। ठीक है, तो ये वाइंडिंग है 7 डैश। ठीक है, यहाँ से जाता है, तो यहाँ से गया इसमें, और इसमें से दूसरे कंडक्टर में आया, दूसरे कम्यूटेटर में। ठीक है, तो एक कम्यूटेटर बार ये हो गया, दूसरा कम्यूटेटर बार ये हो गया। क्लियर? यहाँ तीन टीथ को एक कॉइल के अंदर में लिया है। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरी वाइंडिंग है 2 और 2 डैश, वो भी लंबी दौड़ान लेती है यहाँ से। यहाँ पे ये देखो 2 and 2 डैश, ये वाली वाइंडिंग। ठीक है, तो इसका जो टोटल स्लॉट पिच है वो कितनी है? 1 2 3 स्लॉट पिच है इसकी स्पान। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ऐसे इसमें देखिए कितना है, 4 3 7 है यहाँ पे। अगर यहाँ पे डबल कम्यूटेटर में आ गया तो
डायरेक्शन ऑफ करेंट्स क्या होंगी. सो you can understand the different positions and reversal. आप ये देखिए वोल्टेज एंड टॉर्क इक्वेशन, वोल्टेज एंड टॉर्क इक्वेशन सेल्फ इंडक्टेंस. तो जो ये फील्ड सर्किट का है, फील्ड सर्किट का केवल अकेले का होगा रेजिस्टिव लॉस एंड द इंडक्टिव लॉस. फ्लक्स लिंकेज के कारण जो उसमें लॉस होगा, तो टोटल अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू लॉसेस. और आर्मेचर कॉइल का उस पर इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट फील्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय द आर्मेचर करंट. और यहाँ पे जो आर्मेचर वोल्टेज है, टोटल अप्लाइड वोल्टेज, तो एक इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा दैट विल वर्क एज द ड्रॉप. दिस इज रेजिस्टिव ड्रॉप एंड फ्लक्स लिंकेज ड्रॉप. ठीक है, इंडक्टिव ड्रॉप आप बोल सकते हैं. तो यहाँ पे वो सेम इक्वेशन है, ओमेगा आर एल ए एफ आई एफ साइन थीटा था वो. तो यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे ड्यू टू द induced field, induced voltage due to the excitation only, and the voltage drop due to the armature current. सर हाँ 10 बजे से दूसरी क्लास है सर. ठीक है, तो ये इसमें इंडक्टेंसेज वगैरह निकालना है, इसको फिर हम कल डिस्कस करते हैं. अच्छा, रिकॉर्डिंग हम लगता चालू करना भूल गए थे, तो कोई चालू किया है क्या? यस सर, हो रही थी. कौन चालू किया था? रिकॉर्डिंग चालू है सर. अच्छा ठीक है, तो जस्ट वेट, आई एम डाउनलोडिंग द अटेंडेंस. ठीक है, तो आप लोग लीव कर सकते हैं.